کی رضداری بفرش رضا ہم آپ بچھاتے ہیں، امام کا غم مناتے ہیں، ان کی مجلس برپا کرتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم سے کام لیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ایک فرش رضا بچھانا، امام کا غم منانا، یہ ہمارے اوقات سے باہر کا کام ہے۔ مگر کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے جو ہم سے کام لے رہی ہے، کوئی ہے جو ہم سے یہ خدمت لے رہی ہے، یعنی ہم خادم اذان ہیں، مالک اذان نہیں ہیں۔ اور خادموں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، خادموں کو اپنی اوقات میں اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ ہم مالک اذان نہیں ہیں، خادم اذان ہیں، خادم فرش اذان ہیں۔ یہ معصوم نے، یہ مولا نے ہم کو توفیق دی ہے تو ہم یہ انجام دے رہے ہیں۔ بہت سے ایسے ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے مگر کچھ نہیں کر رہے ہیں امام کے لیے۔ لیکن کوئی ایسا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ مولا کے لیے حاضر کر دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توفیق وہاں سے ملتی ہے، ہم خدمت کا ہم کو توفیق وہاں سے مل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر امام نے ہم کو یہ خدمت کا موقع دیا ہے، لیکن ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ امام ہم سے خدمت کا موقع چھین لے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ اپنے قوم کے تمام بزرگوں کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات۔ لہذا خدمت میں، جذبہ خدمت میں کمی نہیں ہونا چاہیے، خلوص اور نیت انسان کی خالص رہنی چاہیے۔ امام حسین کے لیے جو کچھ بھی امام حسین کے لیے، مولا کے لیے، جب مولا کے لیے ہے بات آگے درج کرتا، جب البتہ سوچ کے نہیں آیا تھا، ابھی فرش رضا پر یہ خیال آیا کہ جب مولا کے لیے ہے ہر کام، علم کس کا؟ مولا عباس کا، مجلس امام حسین کی، فرش رضا امام حسین کا۔ لیکن آپ ذرا تصور کریے کہ یہاں پر کیا ہو گیا ہے۔ یہاں سے بات یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، معاشرے میں، سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، میری مجلس، میرا علم، میرا جلوس، کیا کر رہا ہوں، میرا تعزیہ، میرا امام باڑہ، میری فرش رضا، میری مجلس، میرا امام بارگاہ، میری کربلا۔ جب آپ نے میرا لگا دیا تو پھر امام حسین کہاں گئے؟ یہ سب امام حسین کا ہے۔ جب امام حسین کا ہے تو اس کی نسبت مولا کی طرف رہنی چاہیے، ہمارا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں اور ہم جب اپنے کو دیکھتے ہیں، کربلا اور ہم، یعنی ایک طرف کربلا کی عظمت ہے، ایک طرف ہماری ذلت ہے، ہماری خوالی ہے، ہماری ذات ہے، ہمارا کردار ہے۔ جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں اور جب اپنے کو دیکھتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کے ساتھ ہم کو رکھا جائے، کربلا اور ہم کا تصور کیا جائے، تو ہم بھی اتنا، ہمارا کردار اتنا بلند ہو کہ پھر ہم کربلا کے سامنے نظر آنے کے لائق بن جائیں۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے۔ لہذا یہ مقصد امام حسین ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، کس کی؟ رسول رسالت ماب کی حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ الاسلام ان تسلم قلبک۔ اسلام، ابھی تک آپ اسلام کی فضیلت، اسلام کی معنویت، اسلام کی برتری سمجھ رہے تھے۔ اب اسلام کی شرافت اس کے قوانین اور اس کے قواعد اور قانون سے سمجھیے، اس کے احکام سمجھیے۔ اسلام کہتے کسے ہیں؟ الاسلام ان تسلم قلبک۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف حج کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف واجبات کی ادائیگی اور حرام سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ ہے کہ تمہارا حق، معصوم کی حدیث ہے، اسلام یہ ہے کہ تمہارا قلب، تمہارا دل، تمہارا جسم، تمہاری روح حق کے سامنے سجدہ ریز نظر آئے، حق کے سامنے تمہارا دل جھکا رہے۔ اسلام یہ ہے۔ یہ پیغام امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے آپ کو دے رہا ہوں، اور یہی پیغام امام حسین نے اپنی پوری زندگی میں دیا ہے، حتیٰ کہ کربلا کے میدان میں آنے کے بعد امام نے یہی پیغام دیا ہے۔ آپ مجلس میں آ کر امام حسین کے پیغام کو لینے کی کوشش کیا کریے کہ ہم مجلس میں آئے ہیں تو امام نے کیا ہم کو پیغام دیا ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سجدے میں پڑے ہوں۔ اس لیے کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابل جو لشکر تھا نا، وہ سب حافظ کل قرآن تھے،
सब जो है वो नमाज के पाबंद थे, सब कुरान पढ़ने वाले थे, काफिर नहीं थे सामने, सब कुरान पढ़ने वाले थे, सब नमाजें पढ़ने वाले थे, सबकी पेशानियों पर सजदे के निशान थे। लेकिन इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है कि नमाज पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है, सिर्फ रोजे रखने वाला मुसलमान नहीं है, हज को जाने वाला मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमान वो है जो इस्लाम के सामने, हक के सामने उसका दिल झुका हुआ हो। इसलिए कि लश्कर इस्लाम में करबला के मैदान में उस तरफ नमाज पढ़ने वाले तो थे, लेकिन मार्फत इमाम हुसैन रखने वाले नहीं थे। इमाम की मार्फत रखने वाले अगर होते तो इमाम के साथ आ जाते, इमाम की मार्फत रखने वाले अगर होते तो इमाम के ऊपर पानी बंद न करते, इमाम के बच्चों को प्यासा न रखते। इसका मतलब ये है कि तुमने नमाजें तो पढ़ी हैं, तुमने रोजे तो रखे हैं, लेकिन तुमने इस्लाम को नहीं पहचाना है। इस्लाम नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम ये है कि जहाँ पर हक हो के सामने झुक जाओ, यही इस्लाम है। एक सलवात पढ़िए जल्दी आपके सामने दूसरा पैगाम ये है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मुसलमान कौन है? जो इस्लाम बताया ना, इस्लाम ये है कि हक के सामने झुक जाओ, जहां पर हक नजर आए तुमको उसके सामने झुक जाओ, फिर कुछ नहीं। दुनिया चाहे मुखालिफ हो, ताकत चाहे मुखालिफ हो, खानदान वाले चाहे मुखालिफ हो, अगर हक नजर आ रहा है तो हक का हक ये है कि उसके सामने झुक जाओ। दूसरा पैगाम जो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दिया है वो ये है कि मुसलमान वो है जिसके जबान से, उसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। कहाँ हैं हम किस तरफ जा रहे हैं? ये पैगाम क्यों नहीं ले रहे हैं? इन चीजों क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये इमाम हुसैन ने पैगाम दिया, मुसलमान वो है जिसकी जबान से, उसके हाथ से दूसरा मुसलमान तकलीफ में ना हो। ये है इस्लाम, ये है मुसलमान। सिर्फ इमाम हुसैन ने कहा नहीं है, बल्कि इसके ऊपर अमल करके बताया है। आप मुझे बताइए, जिस वक्त से इमाम हुसैन मदीने से निकले हैं और जब तक करबला पहुंचे हैं, शहीद होने तक, आप ये बताइए किसी ने किसी को भी इमाम हुसैन ने परेशान किया हो? कोई एक रवायत बता दिए कि कहीं पर किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, कभी किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, कहीं किसी का माल गस्ब किया हो, कुछ भी किया हो इमाम हुसैन। हत्ता कि सिर्फ इमाम हुसैन ही नहीं, बल्कि मौला के लश्कर के जितने लोग भी हैं, जो भी इमाम के साथ था, वो इमाम के सामने से दरेज था। जहां पर मौला खड़े हो गए वही हक है, जिधर इमाम हुसैन जो कहते हैं वही हक है। इसका मतलब ये है कि आज की दुनिया में अगर देखा जाए, कहा जाए कि किसी को मार लेना ये ताकत नहीं है, किसी का माल गस्ब कर लेना ये बड़ाई नहीं है, किसी का घर बर्बाद कर देना इसमें कोई शुजाअत नहीं है। शुजाअत ये है कि तुम सब कुछ रहते हुए तुम्हारे हाथ से और तुम्हारी जबान से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। ये है पैगाम करबला। मार लेना शुजाअत नहीं है, बल्कि हक के लिए मर जाना शुजाअत है। अब शुजाअत की तारीफ देखी जाके, शुजाअत का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ ताकत है और तुम्हारा मकसद बुलंद है, तो तुम अपने मकसद के लिए अपने को कुर्बान कर दो, सब कुछ होते हुए। इसे कहते हैं शुजाअत। यही पैगाम इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दिया है। आज जाने गिरामी 3 मुहर्रम खत्म हो गई और 3 दिन से ये नूरानी हस्तियाँ, इमाम हुसैन, उनके असहाब, उनकी औलाद, हत्ता के शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारी मेहमान हैं। लेकिन इंसाफ से बताइएगा, अपने दिल के हाथ रख के बताइए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इंसाफ से बताइएगा, क्या आपने शहजादी का हक अदा किया है? क्या आपने शहजादा का हक अदा किया है? यकीनन जवाब सबका नाम आएगा कि जो हक के गिरिया था वो अदा नहीं हुआ, जो हक के मातम था वो अदा नहीं हुआ है। हम मातम के लिए पैदा हुए हैं, हम 10-12 दिन यहाँ पर मजलिस और मातम के लिए आते हैं। जाने गिरामी, हाथ जोड़कर गुजारिश ये है कि जितना ज़्यादा वक्त हो सके फर्श अदा पर गुजारिए, इसलिए कि 12 दिन के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। 12 दिन के बाद फर्श अज़ा उठ जाएगा, फिर आइंदा साल हमें नहीं मालूम कि हम में से कौन जिंदा रहेगा, इसलिए कि बहुत से ऐसे हैं जो आइंदा साल इस फर्श अज़ा पर रहे होंगे और बहुत से ऐसे हैं कि जो इस साल फर्श अज़ा उनको नहीं मिल रही है, ये तौफीक नसीब नहीं हो रही है। हमें नहीं मालूम कि आइंदा हमारा सांस हमारा मौत की तरफ है या हयात की तरफ
है, हमें ये खबर नहीं है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी का आखिरी मुहर्रम समझ के मनाइए कि हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी मौका मौला ने दिया है कि तुम मेरा गम मना लो। लिहाजा मेरे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जितना ज़्यादा वक्त हो सके मजलिसों में गुजारिए, मजलिसों में आया करिए, ताकि शहजादी जो है वो नाउम्मीद होकर न जाए। नाने गिरामी, आज 3 मुहर्रम हो गई है ना, मैंने सुबह के मसाए में पढ़ा था कि इमाम के हक में जसारत करने वाला खुद इमाम की खिदमत में आकर माफ़ी मांगता है, इमाम के कदमों में माजरत करता है, मौला क्या मेरी खता माफ़ हो सकती है, क्या मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं? इसलिए मुझे मालूम है मैंने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह ये किया है कि इमाम को घेर कर करबला के मैदान में लेके आया हूँ। इमाम करीम इब्ने करीम है ना, उनका जुमला आप सुनिए। इमाम ने कहा है हुर, जब मैंने भी माफ़ किया मेरे खुदा ने भी माफ़ किया, तू दुनिया में भी आज़ाद है, आखिरत में भी आज़ाद है। जाने गिरामी, हुर कहता है मौला अब मैं आपकी खिदमत में आ गया हूँ, मैं चाहता हूँ जब मुझे आपने माफ़ कर दिया है ना, मैं चाहता हूँ जब आपने मुझे माफ़ कर दिया है तो अब मैं अपने गर्दन पर कोई गुनाह नहीं चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं आप पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। एक मतलब इमाम ने कहा ऐ हुर, अभी तो तू मेरा मेहमान हुआ है। अज़ान गिरामी, जुमला सुनी इमाम का, ऐ हुर तू उस वक्त आया था जब दुश्मन बनकर आया था, मैंने तुझे सैराब कर दिया था, आज तू मेहमान बनकर आ रहा है, हमारे यहाँ पानी नहीं है। अल्लाह अकबर, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मज़लूम करबला के, आज तू मेहमान बन के आया है, तेरी मेहमान नवाजी के लिए मेरे खैमे में पानी नहीं है। ऐ हुर, मैं तुझसे माजरत चाहता हूँ, मैं तेरी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। हुर कहता है मौला मैं मेहमान नवाजी के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी जान को आप पर कुर्बान करने के लिए आया हूँ। तो कहता है मौला मुझे मरने की इजाज़त दे दिए। एक मतलब मौला कहता है हुर क्या गजब कर रहा है, जवान बेटा मौजूद है, तू मरने की बात कर रहा है। अरे जवान बेटे के सामने कौन मरने की बात करता है। एक मरतबा हुर कहता है मौला अगर मुझे मरने की इजाजत नहीं दे रहे ना तो मेरे बेटे को इजाजत दे दिए कि वो आप पर अपनी जान कुर्बान कर दे। एक मरतबा बेटा चलता है, लश्कर आदा की तरफ जाता है और एक मरतबा लश्करों में वो हमला करना शुरू करता है। जब दुश्मन की फौज में था, जब बातिल की फौज में था, वो शुजाअत नहीं दिखा पाया, अब हुसैन के लश्कर में आया है, वो शुजाअत अंजाम देकर एक मर्तबा वो शहादत का जाम पीकर एक मर्तबा जब वो जमीन पर आता है, आने के बाद कहता है बाबा मेरी मदद को आइए। एक मर्तबा हुर चलना चाहता है, मैंने मजलिस को तमाम कर दिया, हुर चलना चाहता है, एक मर्तबा मौला ने उसके हाथों को रोका। हुर क्या गजब कर रहा है, जवान का लाशा बूढ़ा बाप नहीं जाया करता है। एक मर्तबा हुर ने कहा है मौला यही 10 मुहर्रम होगी, अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे होंगे, ऐ मौला आप अपने जानू में अली अकबर का सर रखकर अली अकबर से फरियाद करो।